Hello students, you're welcome. Today I have brought to you a poem Is Poetry Always Worthy When It's Old? Actually this is not a separate poem, this is a collection of stanzas and these stanzas were originally written in Sanskrit literature by three different poets as Kalidas, Bhavbhuti and Bhartrihari, and their stanzas were translated into English by John Brough, and they are compiled here as a poem for us. So, dear students, first I will introduce you to the poets. So, first one is here Kalidas. The period of Kalidas was 4th and 5th century. Dear students, Kalidas was a classical Sanskrit author and is often considered ancient India's greatest poet and dramatist. His plays and poetry are primarily based on the Vedas, the Ramayana, the Mahabharata and the Puranas. His surviving works consist of 3 plays, 2 epic poems and 2 shorter poems. That is Malvikagnimitram, Avijnana Shakuntalam, Vikramo Varshiyam, Raghuvansham, Meghaduta, Kumar Shambhavam and Ritu Shangahara. So these are the works composed by Kalidas. Kalidas was a great poet of Sanskrit literature and he is regarded as a Shakespeare. He is compared to Shakespeare in India. So a great dramatist and poet was Kalidas. So his one stanza is compiled in this poem that is here for us. Next writer of the second stanza is Bhavbhuti. Bhavbhuti was an 8th century scholar of India, noted for his plays and poetry written in Sanskrit. Bhavbhuti was born in Padampura, Vidarbha, in Gonda district on Maharashtra and Madhya Pradesh border. He is believed to have been the court poet of King Yashovarman of Kannauj. Mahavir Charita, the story of the highly courageous one, depicting the early life of Ram. This is his work, a well-known work. Malati Madhava, a play based on the romance of Malati and Madhav. This is his work. And Uttar Ramcharita, the story of Ram's later life, depicts Ram's coronation, the abandonment of Sita and their reunion. These are the main works of Bhavbhuti. So you can understand Bhavbhuti was also a great writer of Sanskrit literature like Kalidas. And third one is here Bhartrihari. We have 4 stanzas of Bhartrihari in this poem. So Bhartrihari, 570 AD, born in Ujjain, is a Sanskrit writer to whom are normally ascribed 2 influential Sanskrit texts. Vakyapadya on Sanskrit grammar and linguistic philosophy, Sataktraya, a work of Sanskrit poetry comprising 3 collections of about 100 stanzas each. So dear students, now after introducing the poets, I will come on to the introduction of the poem. So what is written in the stanzas, I will introduce you one by one. So in the first stanza, Kalidas asks whether poetry is always worthy when it's old and worthless if it is new. कालिदास पूछता है कि पोइट्री क्या हमेशा काबिल तारीफ होती है, गुणवान होती है जबकि वह ओल्ड है, और यदि नई है तो वर्थलेस हो जाती है। इसका वह आंसर स्वयं नहीं देता है बल्कि रीडर्स पर छोड़ देता है। नेक्स्ट भवभूति का जो सेकंड स्टैंजा है उसमें he says that if some learned critics publicly criticize his work, let them.
यदि कोई विद्वान आलोचक उसके वर्क की आलोचना करते हैं तो उन्हें करने दो, बिकॉज फॉर देम ही हैज नॉट रिटन हिज वर्क्स, क्योंकि उनके लिए उसने वर्क्स नहीं लिखे हैं। हिज वर्क विल बी अप्रिशिएटेड इन द कोर्स ऑफ टाइम, एक समय आएगा जब उसके वर्क्स की प्रशंसा होगी। कोई ना कोई तो ऐसा फॉलोअर, ऐसा व्यक्ति पैदा होगा जो कि उसके वर्क्स की प्रशंसा करेगा। एंड आफ्टर दिस कम्स द स्टैंजाज ऑफ भर्तृहरि। इन हिज फर्स्ट स्टैंजा, भर्तृहरि सेज दैट पोएट्री इज ओनली यूजफुल इफ इट इंप्रेसेस द रीडर्स। पोएट्री यूजफुल है यदि वह रीडर्स को प्रभावित करे। एज ए बाउमेन्स डार्ट इज सक्सेसफुल इफ इट पुशेस थ्रू द हार्ट, जैसे कि बाउमेन तीरंदाज का तीर तभी सक्सेसफुल होता है जबकि वह हार्ट को भेद दे, उसी तरह से पोएट्री भी रीडर्स को प्रभावित करनी चाहिए। नेक्स्ट, भर्तृहरि सेज दैट सम क्रिटिक्स हैव नो नॉलेज टू कंपोज पोएट्री। भर्तृहरि कहते हैं कुछ ऐसे आलोचक होते हैं जिनको पोएट्री लिखने का कोई ज्ञान नहीं होता, दो शब्दों को भी नहीं जोड़ सकते पोएट्री के लिए। बट दे बिगिन टू जज कॉम्प्लेक्स वर्क्स ऑफ ग्रेट राइटर्स, लेकिन बड़े बड़े राइटर्स के जटिल वर्क्स को वे जज करने बैठ जाते हैं और शुरू हो जाते हैं। खुद से आता नहीं है, दूसरे के वर्क की आलोचना करते हैं। ही कॉल्स देम स्काउंड्रल्स, वे उनको स्काउंड्रल्स कहता है, दुष्ट कहता है। एंड सेज दैट दे आर अटेंटिव टू फाइंड फॉल्ट्स ऑफ ग्रेट वर्क्स, और वे ग्रेट वर्क्स की कमी निकालने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इस तरह से ऐसे क्रिटिक्स जो कि खुद स्वयं कुछ नहीं जानते, उनके लिए यह अटैक है। नेक्स्ट, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड इवन द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंट वर्क्स, वे इंटेलिजेंट वर्क्स का अर्थ तक नहीं समझ पाते। बट दे ऑलवेज ब्लेम द वर्क्स नॉट देयर फुलिशनेस, लेकिन वे हमेशा वर्क की ब्लेम करते हैं, अपने स्वयं की मूर्खता को ब्लेम कभी नहीं करते हैं कि उनमें ये नॉलेज नहीं है, इसलिए उनको यह समझ नहीं आया। नेक्स्ट स्टैंजा, इफ अ मैन लिव्स 100 years, यदि कोई व्यक्ति 100 वर्ष जीता है, इट इज रिगार्डेड एज अ वेरी लॉन्ग लाइफ, तो ये बहुत ही लंबा समय माना जाता है। बट दिस लाइफ स्पेंड्स इन वेरियस वेज, लेकिन ये जीवन विभिन्न तरह से व्यतीत हो जाती है। सो ही आस्क्ड द टाइम फॉर जॉय इन लाइफ, इसलिए वह जीवन में आनंद का समय कब है यह पूछता है। नेक्स्ट स्टैंजा, अ वाइफ आस्क्ड हर हस्बैंड व्हाट शी शुड से टू स्टॉप हिम फ्रॉम गोइंग अवे। इसमें वाइफ अपने हस्बैंड से पूछती है कि जब वह जाए, हस्बैंड जाए, तो वाइफ क्या कहे जिससे कि वह अशुभ नहीं लगे, बुरा नहीं लगे उसे। शी गिव्स 5 एग्जाम्पल्स, 5 उदाहरण देती है कि मैं क्या कहूं। एंड आस्क्स हर हस्बैंड टू टेक द राइट वे टू स्टॉप हिम, और अपने हस्बैंड से पूछती है कि उसे राइट वे बताए उसे रोकने के लिए कि वह क्या कहे। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे स्टैंजाज इस कलेक्शन में कंपाइल किए गए हैं। सो वन बाय वन हम इन स्टैंजाज का एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट हियर, दिस इज स्टैंजा बाय कालिदास। इज पोएट्री ऑलवेज वर्दी व्हेन इट्स ओल्ड, एंड इज इट वर्थलेस देन बिकॉज इट्स न्यू? रीडर, डिसाइड योरसेल्फ इफ दिस बी ट्रू। फुल सस्पेंड जजमेंट waiting to be told. What does he say? Is poetry always worthy? क्या पोइट्री हमेशा वर्दी होती है, रेस्पेक्टफुल होती है, गुणवान होती है, काबिल तारीफ होती है? When it's old, जब यह पुरानी होती है। When it is old, जब पोइट्री ओल्ड है, पुरानी है, तभी काबिल तारीफ या गुणवान, गुण संपन्न होती है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन और पूछता है साथ में इसी तरह से, एंड इज इट वर्थलेस, और यह वैल्यूलेस हो जाती है, देन बिकॉज इट्स न्यू, क्योंकि यह नई है। यदि न्यू पोएट्री या न्यू राइटर्स ने लिखी है करेंटली, तो यह वर्थलेस हो गई।
और यदि ओल्ड पोइट्स ने लिखी है, ओल्ड राइटर्स ने लिखी है, तो यह है वर्दी है। क्या यह बात सही है? क्या ओल्ड पोएट्री वर्दी है? क्या न्यू पोएट्री वर्दी नहीं है? 2 क्वेश्चंस वह रीडर से पूछता है। रीडर डिसाइड योरसेल्फ, और रीडर से कहता है डिसाइड योरसेल्फ, तुम स्वयं ही डिसाइड करो, इफ दिस बी ट्रू, यदि यह सही है। अर्थात यह बात सही है या गलत है, यह तुम स्वयं ही डिसाइड करो। फुल सस्पेंड जजमेंट, मूर्ख लोग तो अपना जजमेंट डिले करते हैं, पोस्टपोन करते हैं, दूसरे विद्वान व्यक्ति का इंतजार करते हैं कि वह अपनी राय प्रकट करे, उसके आधार पर वे अपनी ओपिनियन देंगे। सो फुल सस्पेंड जजमेंट, वेटिंग टू बी टोल्ड, वे इंतजार करते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर उस बात पर ओपिनियन दे और उसी के आधार पर वे कहेंगे। In this way, the poet here puts forward 2 questions. First, is poetry always worthy when it is new? And the second question is, this poetry is worthless when it is new. And he does not reply these questions, but instead he puts these questions, leaves these questions to the readers that they should answer them. In this way, this is the stanza of Kalidas here in this collection. Next one is of Bhavabhuti, and this is an attack on critics. So what does he say? If learned critics publicly deride, यदि कोई विद्वान क्रिटिक्स, आलोचक पब्लिकली, सार्वजनिक तौर पर डिराइट, क्रिटिसाइज माई वर्क, लाफ एट माई वर्क, मोक एट माई वर्क, मेरी वर्क पर मजाक उड़ाते हैं, आलोचना करते हैं, वेल लेट देम, अच्छा है उन्हें करने दो। यदि मेरी वर्स, मेरी पोएट्री की वे आलोचना करते हैं तो करने दो। नॉट फॉर देम आई राउट, नॉट फॉर देम आई वर्कड आउट, उनके लिए मैंने काम नहीं किया है, उनके लिए मैंने पोएट्री नहीं लिखी है। वन डे अ मैन शैल लिव, एक दिन कि अ मैन शैल लिव, कोई तो व्यक्ति पैदा होगा, टू शेयर माई थॉट, जो कि मेरी थॉट को शेयर करेगा, उसे मेरे थॉट्स अच्छे लगेंगे। फॉर टाइम इज एंडलेस, क्योंकि ये टाइम एंडलेस है। एंड द वर्ल्ड इज वाइड, और ये संसार बहुत विशाल है। तो इतनी वाइड वर्ल्ड में, इतने इंडेफिनिट टाइम में कोई ना कोई तो ऐसा पैदा होगा जो मेरी वर्क की प्रशंसा करेगा। कहने का मतलब है, यदि कोई व्यक्ति मेरी आलोचना अब करते हैं तो वह व्यक्ति ज्यादा समय के लिए तो रहेगा नहीं, कुछ समय बाद नए लोग आएंगे और वे मेरे वर्क को पढ़ेंगे और उनको वह वर्क अच्छा लग सकता है। सो इन दिस पोएम द पोएट सेज, इफ सम लर्निड क्रिटिक criticizes my work, let him, I don't care. There will be a time when some follower will come who will share my thoughts and will like my work. So I am waiting for such as a person. This is a stanza of Bhavabhuti. Now third one is of Bhartrihari, and the 4 stanzas are there of this poet Bhartrihari. Here what does he say? Of what use is the poet's poem? Poet की poem किस काम की? Of what use is the bowman's dart? bowman तीरंदाज का तीर किस काम का? Unless another sense is real, यदि दूसरे लोगों की सेंस, बुद्धि को वह घुमा नहीं दे तब तक किस काम की? When the sticks quivering in the heart, जबकि यह क्विवरिंग, घूमता हुआ, स्टिक्स पुश थ्रू द हार्ट, हार्ट में घुस न जाए तब तक यह किस काम का? अर्थात पोइट्री तभी इंप्रेसिव होती है, प्रभावशाली होती है, प्रभावी होती है जबकि यह रीडर्स को इंप्रेस करे। जैसे कि बाउमैन का जॉब है
तीर चलाना और उसका तीर यदि निशाने पर लगता है तभी वह सक्सेसफुल होता है। इसी तरह से पोइट भी तभी सक्सेसफुल है जबकि वह रीडर्स को इम्प्रेस करे। सो इन दिस पोएम द पोइट सेज दैट the poetry of a poet is impressive if it can impress the readers, if it can reach to the hearts of the readers, like a bowman's dart sticks through the heart. In the same way, poetry should be to impress the readers. Next is fourth stanza. In this stanza, he says, scoundrels without the wit to fit a word or two of verse together, are daunted not a way to sit in judgment on the abstruse poetry of another. Scoundrels, scoundrels is dishonest person, बेईमान लोग, दुष्ट लोग, critics, without the wit, they have no wit, they have no wisdom, intelligence, they are not so intelligent. उनमें इतनी सी भी बुद्धि नहीं होती टू फिट अ वर्ड और टू कि एक या दो शब्द भी जोड़ सकें और वर्स और पोएट्री टुगेदर, कि पोएम के लिए एक दो शब्द भी जोड़ सकें, इतनी उनमें एबिलिटी नहीं होती। लेकिन आर डोंटेड नॉट, आर नॉट डिस्करेज्ड, विट अ लिटिल टू शिट इन जजमेंट, कि भी जजमेंट में बैठ जाते हैं, थोड़े भी हतोत्साहित नहीं होते। ऑन द एब्स्ट्रूज पोएट्री ऑफ अनदर, दूसरे पोइट्स की जो एब्स्ट्रूज पोएट्री है, जो डिफिकल्ट पोएट्री है, कॉम्प्लेक्स पोएट्री है, जो इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, उस पोएट्री को समझने के लिए, उसका जजमेंट करने के लिए बैठ जाते हैं। खुद पर आता नहीं, दूसरे की कॉम्प्लेक्स पोएट्री का जजमेंट करने बैठते हैं। Such men will listen with attentive mind, और ऐसे लोग बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। Alert to see how many faults they find, और बहुत ही अलर्ट हो जाते हैं कि उस वर्क में वे कितनी कमियां ढूंढ पाए। कमियां ढूंढने के लिए लग जाते हैं, खुद पर आता नहीं है, दूसरे की डिफिकल्ट पोएट्री की वे कमियां ढूंढते हैं। ऐसे डिसऑनेस्ट क्रिटिक्स पर्सन्स रीडर्स भी होते हैं। Next, in this same stanza, and if they are vexed, और यदि वे annoyed हो जाएं, नाराज हो जाएं, irritated हो जाएं, क्यों? Because they fail to grasp the sense, क्योंकि वे उस पोएट्री का सेंस अंडरस्टैंड करने में असमर्थ हो गए, समझने में असमर्थ हो गए। यदि वे उस पोएट्री का अर्थ नहीं समझ पाते तो नाराज हो जाते हैं। और वर्क्स, ऐसे वर्क्स का कंसीव्ड फॉर रीडर्स ऑफ इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंट रीडर्स के लिए लिखे गए हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑब्सक्योर, ऐसे जटिल वर्क्स का वे अर्थ भी नहीं समझ पाते, उसका सेंस भी नहीं समझ पाते तो नाराज हो जाते हैं, कमियां ढूंढते रहते हैं। दे नेचुरली डू नॉट ब्लेम देयर फुलिशनेस, तो ऐसी स्थिति में वे अपनी फुलिशनेस को ब्लेम नहीं करते कि हम पर नहीं आता, बट दे ब्लेम द वर्क ऑफ ग्रेट राइटर्स, इंटेलिजेंट राइटर्स। ऐसे ग्रेट राइटर्स के वर्क की वे आलोचना करते हैं। अ गर्ल हु इज लेस देन परफेक्ट, एग्जाम्पल देता है पोएट, जैसे कि कोई गर्ल परफेक्ट नहीं है, लेस देन परफेक्ट, परफेक्ट से कम है। ऑलवेज ब्लेम्स द ड्रेस, वह हमेशा अपनी ड्रेस को ब्लेम करती है कि ये ड्रेस, दिस इज नॉट सो ब्यूटीफुल, दिस इज नॉट सो गुड, इतनी इस तरह से वह कहती है। रियली वह यह नहीं देखती कि कुछ कमी मुझ में भी हो सकती है। इन द सेम वे such as scoundrels do not blame themselves, but they blame the works of erudite writers. They blame the works of intelligent poets. That is, he says in this stanza. Very interesting it is.
What does he say? A man lives long who lives 100 years, yet half is sleep and half the rest again, old age and childhood. For the rest, a man lives close companion to disease and tears, losing his love, working for other men. Where can joy find a space in this short span? A man lives long. व्यक्ति बहुत लंबा जीता है. Who lives 100 years? जो 100 वर्ष जी लेता है. ऐसा माना जाता है जो 100 वर्ष जी लिया उसने बहुत अच्छी, बहुत लंबी लाइफ पाई है. Yet half is sleep. लेकिन उस 100 years में हाफ तो स्लीप ही हो जाती है, नींद ही हो जाती है. तो 100 years कहां रहे? Where are 100 years? His half time is spent in sleep, and half the rest again, and this remaining half is spent in rest of old age and childhood. ओल्ड एज और चाइल्डहुड का जो रेस्ट का टाइम है उसमें उसकी शेष आधी खत्म हो जाती है. फॉर द रेस्ट, और जो शेष और बची रेस्ट उसमें अ मैन लिव्स क्लोज कंपेनियन टू डिजीज एंड टीयर्स. व्यक्ति डिजीज, बीमारी और टीयर्स, आंसुओं का बहुत ही क्लोज कंपेनियन रहता है. बहुत सारी उसे परेशानियां आती रहती हैं, बहुत सारे दुख आते रहते हैं. देयर आर सो मेनी सॉरोज एंड सफरिंग्स इन दिस रेस्ट ऑफ द लाइफ. लॉसिंग हिज लव, जैसे कि उसकी लव बिलवेड उसको खो देता है. वर्किंग फॉर अदर मैन, दूसरे लोगों के लिए काम करता रहता है, सर्विस करता है, नौकरी करता है. इन दिस वे this long period of 100 years is spent in such as activities of life. So where can joy find a space in this short span? तो इस शॉर्ट स्पेन में जॉय के लिए कहां स्थान है? जॉय के लिए तो कोई टाइम ही नहीं बचा. जीवन इसी तरह से सफरिंग्स और बिजीनेस में व्यतीत हो जाती है. तो जॉय के लिए कहां स्थान है? वेयर इज द प्लेस फॉर जॉय? दैट ही सेज इन दिस पोएम. So the message of this stanza is that we should find a place of joy in this whole period. Otherwise, we have so many duties, diseases and sufferings that this will be lost and we cannot enjoy this life. Next and the last one is Bhartrihari again. In this stanza, a wife is asking her husband the way to stop him when he goes, or the way to say something when he departs. So what is here? Do not go, I could say, but this is inauspicious. All right, go is a loveless thing to say. Stay with me is imperious. Do as you wish, suggest cold indifference. And if I say I will die when you are gone, you might or might not believe me. Teach me, my husband, what I ought to say when you go away. Do not go, मत जाओ, don't go. I could say, मैं कह सकती, but this is inauspicious. लेकिन ये inauspicious होता है. This is not a good omen. ये अशुभ होता है. यदि कोई जा रहा है और उससे कहें कि मत जाओ, this is inauspicious. ये अशुभ होता है. All right, go, ठीक है जाओ, is a loveless thing to say. यह कहना तो लवलेस लगता है. ऐसे लगता है कि उसको कोई मतलब ही नहीं है. She does not care of him whether he goes or not. She doesn't care. तो all right go का
मतलब है उसे कोई मतलब ही नहीं है, दिस इज लवलेस थिंग। स्टे विद मी, मेरे साथ रुके रहो, इज इंपीरियस, ये इंपीरियस होता है, ये डोमिनेटिंग होता है, प्रभुत्व वाला होता है, अधिकार वाला होता है कि यहीं रुके रहो, डोंट गो, स्टे विद मी, यहीं रुके रहो, मेरे साथ रुको। तो इस तरह यह डोमिनेटिंग है, ऐसा भी नहीं कह सकते। डू एज यू विश, जो आपकी इच्छा वही कर लो। सजेस्ट कोल्ड इंडिफरेंस, यह है तो कोल्ड इंडिफरेंस सजेस्ट करता है, दैट इज लैक ऑफ इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, आपके जो चाहे वह कर लो। डू एज यू विश, तो यह भी प्रॉपर नहीं है। एंड इफ आई से, और यदि मैं कहूं आई विल डाई व्हेन यू आर गॉन, कि मैं तो मर ही जाऊंगी जब तुम चले गए। यू माइट और माइट नॉट बिलीव मी, तो मुझ पर विश्वास करो या ना करो। सो टीच मी माई हस्बैंड, इसलिए मेरे हस्बैंड मुझे सिखाओ व्हाट आई ऑट टू से, कि मुझे क्या कहना चाहिए। व्हेन यू गो अवे, जब तुम जाओ, जब तुम जाओ तो मैं क्या कहूं, क्या बोलूं, मुझे यह सिखाओ। इस तरह से इसमें एक वाइफ अपने हस्बैंड से पूछती है कि वह जब जाए तो वह क्या कहे, उसे कैसे रोके, या फेयरवेल वर्ड्स क्या बोले। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर 6 स्टैंजाज को पढ़ा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैंजाज हैं, इजी लैंग्वेज है, इसमें सिंपल ट्रीटमेंट है, और दीज ऑल आर ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत बाय जॉन ब्रो। सो डियर स्टूडेंट्स, subscribe my channel, like my videos, share and comments also, and dear students, keep watching my channel Pranav Soni sir. Thank you very much.